Namaste. My name is Shubhangi Narayane, student of Savitribai Phule University, Department of Physical Education, course MA Yoga. My roll number is 14 and I am going to give presentation on personality transformation through yoga. So, we will move to the next slide. The contents are: what is personality, types of personality, personalities according to yoga, personalities according to Ayurveda, transformation why only through yoga, some practices of personality transformations, conclusion and references. So, first we will see what is personality. Personality is nothing but the suite of qualities of a particular person. Means if particular person is having particular quality and which is dominant in his personality, like someone is getting angry on anything and any situation frequently, so we call that person as he is or she is short tempered. So we assume that the person is short tempered, so that becomes her or his personality. Then development of personality is an important issue. Personality starts developing since birth, but it assumes great importance during adolescence when reorganization of personality takes place. Personality is a very common term which is used in our day-to-day life. It tells us what type of person is. We know that each person generally behaves consistently in most of the situations, as I told you before in previous slide. The example of this consistency can be seen in a person who remains friendly or a person who is generally kind or helpful in most situations. Such a consistent pattern of behavior is termed as personality. It can be called as the sum of total behavior that includes attitudes, emotions, thoughts, habits, and traits. This pattern of behavior is characteristic to an individual. Now we will move to the next slide, which is different aspects of personality. So here are we can see this different aspects of personality. Various aspects of personality including physical, then mental aspects of personality, emotional, then social and spiritual. So all these factors are combinedly called as person's personality. So we will see three gunas. So three gunas is according to yoga terms. Each person having personality, each person having personality which contains three types of qualities like sattvic guna, rajasic guna quality and tamasic guna quality. So अभी हम लोग देखेंगे कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणा क्वालिटी हर पर्सन में कैसे रहती है. तो हर पर्सन में ये तीनों गुण रहते हैं, बट कभी कभी किसी पर्सन में कोई गुण डोमिनेंट होता है, जैसे किसी में तमस बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी में सत्व गुण बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी में रजस गुण बहुत ज्यादा होता है. सो यूजुअली सात्विकता जिसमें सत्व गुण ज्यादा होता है यानी सत्व गुण डोमिनेंट होता है, ऐसा पर्सन काफी शांत और बैलेंस्ड पाया जाता है. उसके सभी कार्य पॉजिटिव होते हैं. रजसिक पर्सन इसमें अस्थिरता पाई जाती है. राजसिक गुण किसी पर्सन में डोमिनेट होने की वजह से पर्सन कंटिन्यूअसली अस्थिर रहता है,
और इच्छाओं से भरा हुआ रहता है। तामसिकता के गुण पर जब हम लोग फोकस करते हैं तब तामसिक गुण कैसे होता है? तमस गुण आपको निद्रावस्था में आपको लिथार्जिक बनाता है, बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, किसी को गुस्से में हिंसा कर देना, ये तमस गुण के कुछ क्वालिटीज है। सो यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जी ये रजस गुण के लिए कार्य करता है। सात्विक गुण लॉर्ड विष्णु जी जो हमको सस्टेन करने के लिए मदद करते हैं। एंड वी नो एज लॉर्ड शिवा इज द साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन मीन्स tamas gunas. So each and every personality and each and every person and animal in on this earth are dominant by all these three gunas. Sometimes some persons can be combination of sattvic and rajasic dominance, rajasic and tamasic dominance. So there are few combinations like this. We will move to the next slide. See here, as I said, there can be a combination of two gunas like sattvic gunas and sattvic and rajasic and tamasic. Sometimes it may be tamasic and sattvic also. But what happens? According to situation, person behaves. Sometimes situations are worse, then person can become a tamasic. And when the situation are in his or her favor, persons in particular person favor, then their tendency tend to sattvic or rajasic. Personalities, now we will see the personalities according to Ayurveda Shastra. जैसे कि हम सभी को पता है वात, पित्त और कफ ये तीन एलिमेंट से हर इंसान की प्रकृति आयुर्वेदाचार्य या फिर कोई आयुर्वेद शास्त्री जो आयुर्वेद गुरु होते हैं वो इस तरीके से आपकी प्रकृति चेक करते हैं या फिर किसी पर्सन की प्रकृति इन तीन दोषास पे अवलंबित होती है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोषास कार्य करते हैं। सभी को पता है कि सृष्टि की निर्मित ही पंच महातत्वों से हुई है। सो वो पंच महातत्व है आकाश, देन उसके बाद आता है वायु, उसके बाद वायु से आता है अग्नि, अग्नि से आता है जल, उसके बाद आता है पृथ्वी। सो ये पांच एलिमेंट हर किसी जीव में मौजूद होते हैं। सो जहां आपके ईथर एंड एयर डोमिनेट होगा वहां वात प्रकृति होंगी, जहां फायर और वाटर होगा डोमिनेंट वहां पित्त प्रकृति होंगी, जहां वाटर और अर्थ होगा वहां कफ प्रवृत्ति होंगी। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से प्रकृति इंसान की किसी एलिमेंट के डोमिनेंट होने की वजह से बदल सकती है। कभी कभी दोषास भी इसी तरीके से आपके शरीर में बढ़ सकते हैं। सो ये हो गई पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शास्त्र। अभी हम लोग बढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। जैसे कि मैंने बोला दोषास एंड गुणास दैट इज कॉन्स्टिट्यूटली present in person from conception, which is referred to as the particular prakriti guna combination that a person exhibits. This prakriti guna combination is unique to everyone. ये जो प्रकृति गुना का कॉम्बिनेशन हमने देखा है वो हर किसी में यूनिक हो सकता है।
and is not changeable during the course of their lifetime. यानी जो हमारा प्रकृति का गुण हमको बचपन से मिला है वो हो जरूरी नहीं है कि वो पूरा जिंदगी भर आपका वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि वो चेंज भी हो, लेकिन वो जो एक टाइप की प्रकृति है किसी इंसान की, अगर कोई इंसान पित्त प्रकृति का है तो पूरे जिंदगी भर पूरे उनकी आयु में उनकी प्रकृति पित्त की ही रहेगी। हाँ, कभी कभी उसको हम लोग एलिमेंट के थेरेपी के हिसाब से उस प्रकृति को बैलेंस्ड कर सकते हैं। Now, these are called as types of personality. We see that personality according to yoga, personality according to Ayurveda. Now we will see why to practice yoga for transformation of our personality. तो अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा होता है। तो सिंपली कहा जाता है जो हम खाते हैं वही वैसे ही हम होते हैं। जो हम खा रहे हैं, जैसे कि बोला जाता है आजकल बहुत फेमस है ये चीज, जैसा खाते हैं वैसा ही हो जाओगे। तो जैसा सोचते हैं वैसे ही आप हो जाओगे। सो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप क्या सोचते हो, आपकी थॉट्स पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस आपके एक्शन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। As you think, so you act. Action becomes habit and then habits become character. जिस तरीके से हमारी सोच होगी उस तरीके से हम लोग बिहेव करेंगे। अगर मेरी सोच अच्छा सुनने की है, अच्छा बोलने की है, अगर मैं कुछ अच्छे कार्य करूं, अच्छे कार्य के बारे में सुनूं, अच्छे कार्य के बारे में अपने इंद्रियों से देखूं, अपने आंखों से देखूं, कानों से सुनूं, जो मेरे इंद्रिय अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर मैं सात्विक भोजन खा रही हूँ तो मेरे एक्शंस भी उसी तरीके से रहेंगे, मेरा बिहेवियर उसी तरीके से रहेगा। और उसी तरीके से अगर मेरी थॉट प्रोसेस रही तो मेरी आदतें भी वैसे ही डेवलप होंगी। उसी के चलते चलते वो मेरी आदतें एक मेरा कैरेक्टर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। ठीक है? नहीं, अभी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एट फिजिकल लेवल। Yoga practices begin to work on outmost aspect of the personality. The physical body is the practical and familiar starting point for most of the people. When imbalance is experienced at the physical level, the organs, the muscle, the nerves no longer functions in harmony. Rather, they act in opposition to each other. Yogic practices helps you to overcome these imbalances and create harmony in your body and mind. Doing everything skillfully is also the main aim of yoga. Yogic practices help in attaining the attitude of perfection of mind. Now we will see the development at mental level and emotional level. So जैसा कि हमको पता है, according to Bhagavad Gita, Yogeshwar Krishna says, Samatvam Yoga Uchyate means equanimity of mind. Samatvam Yoga Uchyate. Yoga कर्मसु कौशलम. Yoga is skill in action. किस तरीके से कुशलता से हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग कितने बैलेंस्ड है, इसी को योग कहा जाता है। तो हम लोग सिर्फ बॉडीली एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी आसन को ही हम लोग होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ योग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक कार्य में जिस तरीके से समतोल एक बैलेंस्ड बना के रखते हैं उसको योग कहा जाता है। According to Bhagavad Gita, Yoga Bhavati Dukkha.
सारे दुखों को योग दूर करने के लिए आपको मदद करता है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोधः, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त में यानी हमारे चित्त में जिस तरीके से वृत्तियां है, मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट्स, जो वृत्तियां है, जो बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, उससे जो भाव निर्माण होते हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां होते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये सारी वृत्तियां हमारी चित्त में जो स्थापित होती है, उसकी वजह से हमारा मन हमेशा चंचलता से परिपूर्ण रहता है, और उसी की वजह से जो बैलेंस हमको मेंटेन करना है, वो बैलेंस हमारा हो नहीं पाता है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योगा इसीलिए प्रैक्टिस करो ताकि वो चित्त की वृत्तियां है उनका हम लोग विनाश कर सके, उनका निरोध कर सके। ठीक है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, according to Indian philosophy, describes 4 fundamentals of human life are dharma, artha, kama, moksha. To attain the highest goal of the life, nature has given human body as a means. इसका मतलब क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम सभी को पता है। तो जो भी व्यक्ति अपना धर्म से अपना कर्तव्य करता है, अपना धर्म का पालन करता है, उसको अर्थपूर्ण तरीके से परिपूर्ण करता है, अपना कार्य सही तरीके से करता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा इंडियन फिलॉसफी में डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू वेदांत, वेदांत में क्या दिया है? ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड विद द फॉलोइंग शीट्स। 5 कोशास होते हैं, लेयर्स होते हैं बॉडी के। फिजिकल शीट, वाइटल शीट, एस्ट्रल शीट, विजडम शीट और ब्लिस शीट। तो अभी हम लोग पंचकोशा, इसी को पंचकोशा थ्योरी कहते हैं। जो 5 लेयर्स होते हैं, शीट होते हैं, इसी को पंचकोशा थ्योरी कहा जाता है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेंगे कि इन कोशास में क्या क्या आता है। अन्नमय कोशा में, जिसको हम लोग फिजिकल बॉडी बोलते हैं, इसमें आते हैं हमारे डीएनए, सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, ऑर्गन्स, सिस्टम्स, जो हमको दिखता है और एनाटॉमिकली जो प्रेजेंट है। ठीक है। प्राणमय कोशा, इसको वाइटल एनर्जी लेयर बोला जाता है, जिसमें हमारा ब्रेथ आता है, नाड़ीज आते हैं, चक्रास आते हैं। योगिक प्रैक्टिसेस में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। देन मनोन्मय कोशा, माइंड एंड इमोशनल लेयर, इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर्स, फोबियाज, जो सारी चीजें हमारे दिमाग से उत्पन्न होती है, हमारे सोच विचारों से, वो सब मनोन्मय कोशा में आते हैं। देन विज्ञानमय कोशा, जिस कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल लेयर, इसमें आता है आईनेस। इंटेलेक्चुअल लेयर यानी क्या होता है? हायर सेल्फ होता है, आपकी बुद्धिमत्ता किस तरीके से काम करती है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, ठीक है, कॉन्साइंस, आपकी वैल्यूज क्या है, ये जब आपको पता चलता है। इन शॉर्ट कहना चाहूंगी कि जब आपको ये पता है कि मैं एक दूसरे से अलग हूँ, मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है, इसका जो बीज होता है, ये जहां से शुरू होता है, वहां आपका विज्ञानमय कोश होता है। देन इसको कहा जाता है, लास्ट लेयर को, आनंदमय कोश, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ योर माइंड। यहाँ पे आपको आपके अस्तित्व की जान नहीं रहती है, आपका अस्तित्व क्या है इसके प्रति आपको जागरूकता नहीं रहती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट कही जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस फिगर में, हाउ अ थॉट इम्पैक्ट्स अवर फिजिकल बॉडी। जैसे कि मैंने कहा था, जो हम लोग सोचते हैं वही हमारी
एक्शन में आता है, देन उसके बाद वो हमारी हैबिट बनती है और वही हमारा कैरेक्टर बनता है। तो जो हम लोग सोचते हैं, जैसी आदतें और एक्शन करते हैं, जैसे अगर मेरे दिमाग में किसी तरीके का निगेटिव थॉट आ गया, किसी के लिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो वो मेरे इमोशनल लेवल पे अफेक्ट करेगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से से अपने आप को डिस्टर्ब कर दूंगी। उसकी वजह से उस गुस्से का असर पहले तो मेरे बॉडी लेवल पे होगा, लाइक मेरे फिजिकल शीट पे होगा, देन उसका असर मेरे एनर्जी लेवल पे होगा। सी हियर यू कैन सी दिस, इसका अर्थ मेरे एनर्जी लेवल पे उसका असर होगा, यानी मेरी जो सांसें है, ब्रीथिंग पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली गुस्सा आता है, कोई इंसान अग्रेसिव हो जा रहता है या फिर उसको गुस्सा आ जाता है तो उसकी सांसें जोरों से चलने लगती है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो देखिए उसका असर उसके फिजिकल बॉडी पे होता है। ऑब्वियसली उसके एक्शंस वैसे होंगे, यानी थॉट्स यानी विज्ञानमय कोश, थॉट प्रोसेस अगर अच्छी है तो आपके मनोन्मय कोशा पे यानी आपके इमोशंस पे असर उसका होता है, और इमोशंस अगर अच्छे रहे तो आपके प्राणमय कोश यानी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न अच्छी रहेंगी, और इसी के साथ साथ आपका जो फिजिकल अन्नमय कोशा है वो यानी सारे सिस्टम्स, आपके बॉडी के सारी सेल्स पॉजिटिवली काम करना शुरू करेंगी। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। तो यहाँ जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपके कोशा में क्या क्या चीजें होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, अन्नमय कोशा में हम लोग देख सकते हैं 5 एलिमेंट्स है, जो जो 5 एलिमेंट्स है हमारी बॉडी बनी हुई है। ये मैंने पहले के स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया है। देन प्राणमय कोशा, वह जहाँ पे सारे चक्रास, योगा के टर्म में ऐसा कहा जाता है कि हमारे प्राणों से, जो प्राण है हमारे, जो ब्रीथ है हमारी, वो नाड़ियों से फ्लो होता है, और हमारा जो स्पाइन है, वो स्पाइनल कॉलम, वो प्राणा को, उस प्राण शक्ति को हमारे बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो नाड़ी हमारी शुरू होती है, वो नाड़ी हमारे बॉडी के दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक बीच नाड़ी, मध्य नाड़ी उसको कहते हैं सुषुम्ना, उसके राइट साइड में होती है पिंगला और लेफ्ट साइड में होती है ईडा। पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, ईडा यानी चंद्र नाड़ी। तो इन दोनों का बैलेंस करने के लिए हम लोग हठयोगिक प्रैक्टिस करते हैं, और इन शॉर्ट हम लोग जो प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्राणमय कोशा पे वर्क करते हैं। अगर जब प्राणायाम की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होने लगी, आप लोग प्राणायाम में परफेक्ट होने लगे, तो आपके ये चक्रास, जो एनर्जी सेंटर्स जिसको कहा जाता है, 7 एनर्जी सेंटर्स आर देयर इन प्राणमय कोशा, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके काफी सारे बेनिफिट्स योगिक प्रैक्टिसेस में, योगा हठ योगिक टेस्ट में दिए गए हैं। अभी ये चक्रास अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारे मनोन्मय कोशा पे यानी हमारे इमोशंस पे उसका बहुत अच्छा असर होगा, और हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स में यानी हमारा ब्रेन के सारे एस्पेक्ट्स पे उसका अच्छा असर होगा। यहाँ देख सकते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, डीप सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो हम लोग जब कॉन्शियसली अच्छा काम करते हैं, तब उसका असर डायरेक्टली हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड पे होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लेकर कॉन्शियस माइंड से लेकर सबकॉन्शियस, सब डीप सबकॉन्शियस, देन सुपर कॉन्शियस माइंड पे इस तरीके से इसका असर होता है। तो अभी हम लोग टर्न होंगे विज्ञानमय कोशा में। विज्ञानमय कोशा में क्या आते हैं, आपके ऑर्डिनरी इंट्यूशंस, आपके सॉल्यूशंस, किसी तरीके की क्वेरीज है, आपको क्या है, अगर कुछ क्वेश्चन आया है, कभी कभी लाइफ में
आप फेस करोगे कि आपको ये सिचुएशन आएगा कि आपको ये करना है या वो करना है, तो उसका जो सॉल्यूशंस आप फाइंड करते हो वो आपका विज्ञानमय कोशा के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें देन हम लोग देखेंगे अन्नमय आनंदमय कोशा, स्टेट ऑफ ब्लिस। स्टेट ऑफ ब्लिस ये जो कोशा है, जब आपके ये सारे 4 कोशा अच्छे से अच्छी तरीके से कार्यरत रहते हैं, कहीं कुछ डिस्टरबेंस नहीं रहता है, तब आपका आनंदमय कोशा यानी आपका सुपर कॉन्शियस माइंड पे अच्छा वर्क होने की वजह से आपका ब्लिसफुल स्टेट तक जाने का मार्ग क्लियर हो जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं कोशास के। आनंदमय कोशा और प्राणमय कोश, अन्नमय कोशा और प्राणमय कोशा हमारे कॉन्शियस माइंड पे फिजियोलॉजिकल लेवल पे वर्क करता है। ऐसे स्टेट में हमारी बॉडी जो है अवेकन रहती है, अवेयर रहती है। जब अन्नमय कोशा यानी जैसे खाना खा रहे हैं और हम लोग प्राण ले रहे हैं, ये तब हम लोग अवेक रहते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस से रहेगा अवेयरनेस ऑफ फिजिकल बॉडी, अवेयरनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, मनोन्मय कोशा और विज्ञानमय कोशा में आपका साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होता है सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड जब अवेकन स्टेट में चीजें होती है वो सबकॉन्शियस माइंड पे असर करती है और वो सेव हो जाती है आपकी मेमोरी में। ये होती है ड्रीमिंग अवेयरनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट। यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस होती है एंड अवेयरनेस ऑफ साइकी एंड कैजुअल डायमेंशंस होता है। अभी आनंदमय कोशा में यहाँ का जो जर्नी होता है वो अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस ऐसा होता है। यहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल स्टेट ऐसा रहता है कि जहां आप डीप स्लीप में, जिसको मेडिटेटिव स्टेट कहा जाता है, ऐसे स्टेट में रहते हो। इस स्टेट में आपको किसी भी तरीके का अवेयरनेस नहीं रहता है। यहाँ पे आपका अनकॉन्शियस एंड ट्रांसेंडेंटल स्टेट इसको कहा जाता है। सो यहाँ हम लोग 3 डायग्राम्स देख रहे हैं। तो ये हमारी कुछ 4 तरीके की स्टेट्स है। ठीक है, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। तो हम लोग देखें अभी पंचकोशा। तो अन्नमय कोशा और प्राणमय कोशा हमारे जागृत स्टेट में होता है, मनोन्मय और विज्ञानमय कोशा हमारे स्वप्न स्टेट में होता है, और आनंदमय कोशा जब हम लोग सुषुप्ति में जाते हैं। ये हमारी बॉडी की स्टेट्स है। तो जब हम जागृत रहते हैं, पूरे दिनचर्या के काम करते हैं, तब हम लोग अपने ये 2 इस पे वर्क करते रहते हैं, अन्नमय कोशा और प्राणमय कोशा पे। उसका असर हमारे जब हम लोग निद्रा अवस्था में होते हैं, सबसे पहले उसमें फर्स्ट स्टेज होती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में हमारा मनोमय कोशा पे काम होता है। जो हमने अपने इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई हुई बातें हैं, वो इस अवस्था में आपको अनुभव आप कर सकते हैं स्वप्न में। देखो, जागृत एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम दिन भर में इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ अनुभव होता है। स्वप्न एक, यहाँ देख सकते हैं, स्वप्न एक ऐसी अवस्था है, इसे नींद की अवस्था कहा जाता है, जिसमें हम खुद की दुनिया एक बनाते हैं। जो हमारे स्वप्न जागृत अवस्था में सच नहीं हो पाते, हम उसको सच होते हुए स्वप्न अवस्था में अनुभव कर सकते हैं या फिर करते हैं। देन सुषुप्ति अवस्था हमारे सारे इंद्रियों का कार्य यहाँ बंद हो जाता है, और जागृत अवस्था के अनुभव, उसका ज्ञान, उसका अभ्यास इस अवस्था में, इस सुषुप्ति अवस्था में होता है। और यह प्रज्ञा को बनाने के लिए अतिशय आवश्यक
अवस्था ऐसी होती है, सुषुप्ति अवस्था। तुरीय अवस्था, यहाँ हम लोग एक ऐसे स्टेट में जाते हैं जहां हम लोगों के सारे इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है और हम लोग आनंदमय कोशा का अनुभव करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये अगेन वही सेम चीज है। जागृत वेकफुल स्टेट, स्वप्न ड्रीम स्टेट, तुर्य ब्लिसफुल स्टेट और सुषुप्ति अनकॉन्शियस स्टेट, डीप स्लीप। ओके, सो इन सारी प्रोसेस का हमारे माइंड पे कैसा वर्क होता है, ये देख सकते हैं आप। गैमा वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स, इस 5 तरह की वेव्स हमारे ब्रेन में चलती है। तो जब हाइपर ब्रेन एक्टिविटी होती है, विच इज ग्रेट फॉर लर्निंग एंड एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब हमारा गैमा वेव्स कार्य करता होता है। ये ज्यादातर अन्नमय कोशा में पाया जाता है। बीटा वेव्स engaged in normal everyday activities and conversation. Again, हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, गैमा वेव्स ये इनके लिए होता है, जो साइंटिस्ट रिसर्चर होते हैं वो उनके दिमाग को ज्यादा कार्य करने के लिए जितनी वेवलेंथ चाहिए रहती है वो 31 to 120 हर्ट्ज में होती है। सो वहां पे हाइपर ब्रेन एक्टिविटी होती है। बीटा वेव्स एक नॉर्मल इंसान अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, कॉन्वर्सेशन में एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। देन अल्फा वेव्स 8 to 12 मेगाहर्ट्ज में होती है। यहाँ पे इंसान रिलैक्स्ड होता है, काफी डीपनिंग इनटू मेडिटेशन, ऐसे स्टेट को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। थीटा वेव्स यहाँ पे ड्राउजी एंड ड्रिफ्टिंग डाउन इनटू स्लीप एंड ड्रीम। तो ये आप तुर्य स्वप्न और तुर्य की अवस्था के बीच वाली अवस्था बोल सकते हैं, थीटा वेव्स। और डेल्टा वेव्स डीप स्लीप विथ नो ड्रीम्स, नो थिंकिंग, नो कॉन्शियसनेस, इसको सुषुप्ति अवस्था के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। अभी देखेंगे योगा। व्हाई योगा? योगा इज द स्किल टू काम डाउन द माइंड। योग वशिष्ठ में कहा गया है वाल्मीकि जी के तरफ से, मन प्रश्न पाय योग इत विद्यते, यानी मन में जो भी प्रश्न है, मन के इतनी वृत्तियां है, इतने जो प्रश्न है, वो उसका निराकरण योग के साथ ही किया जा सकता है। तो उसके लिए इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस है योगा की। काफी फेमस प्रैक्टिस में से एक अष्टांग योगा प्रैक्टिसेस बाय महर्षि पतंजलि। एज वी ऑल नो दैट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान leads to samadhi. This ashtang yogic mark helps practitioner to become well balanced human being. Then हठ योगिक प्रैक्टिसेस फॉर फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटीज, उसमें सबसे पहले आता है हठ योगा। हमको सबसे पहले षटक्रियास के बारे में कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, अगर हम लोग अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्लींस नहीं कर रहे हैं तो योग की प्रैक्टिस का इफेक्ट अच्छी तरीके से हमको नहीं मिलेगा। सिर्फ बाहरी तौर पे हम लोग अगर योगा की प्रैक्टिस करें तो हमको उसका इफेक्ट अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। योगा का अच्छा अनुभव लेने के लिए हमको पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लींस करना होता है, जिसके लिए हठ योगा में षट क्रियास के बारे में कहा गया है। तो उसमें आता है आपका नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपाल भाती। तो नेति क्लीनिंग ऑफ नसल पैसेजेस, आपके नॉस्ट्रल्स को क्लीन करने के लिए, नसल पैसेज जो आपके फ्रंटल साइनोसाइटिस है उसको क्लीन करने के लिए विथ वाटर यूज होता है, जिसको हम लोग वाटर के साथ या फिर
फ्रिक्शनल मूवमेंट ऑफ रबर कैथेटर और कॉटन रोप के साथ कर सकते हैं. धोती इज डन बेसिकली फॉर स्टमक वॉशिंग using water, rubber tube or plantain stalk and cloth. Basti is collar flushing. Noli is manipulation of abdominal muscle. Trataka is steady gazing to cleanse the eyes. Kapalabhati. Kapalabhati is most popular Shuddhi Kriya of Hatha Yoga. This is forceful breathing to ventilate and cleanse the air passage. Rapid exhalation we do in Kapalabhati. So now we will move Ahara. So what kind of Ahara we should have? योगा प्रैक्टिसेस हम लोग कर तो लेंगे, लेकिन हम लोगों को 3 मेन पिलर्स पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है जो आपकी योगा प्रैक्टिस को सफल बनाती है. वो है आहार, विहार और विचार. तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला है आहार. क्योंकि हमारे इंद्रिय जो पंचेंद्रिय हम लोग बोलते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, तो 5 सेंसेस से हम लोग जो चीजें लेते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे, माइंड पे होता है. ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया. तो आहार उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी से हम लोग जैसा खाएंगे वैसे सारे न्यूट्रिएंट्स और वैसी सारी चीजें हमारी बॉडी को मिलेगी, उस तरीके से हमारी बॉडी बिहेव करेगी. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आहार संभवम वस्तु रोगश्च आहार संभवा. तो इसका मीनिंग है फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड हेल्थ एज वेल एज डिसीज. According to Gheranda Samhita, here we can see the person who does not follow balanced diet before practicing yoga, many diseases can be arise in his body and he cannot achieve siddhi in the path of yoga. Yes, काफी प्रैक्टिशनर योगा करते हैं, लेकिन अगर उनका बॉडी क्लींस नहीं है षटक्रिया से, इंटरनल ऑर्गन में टॉक्सिन से अशुद्धि है, आहार उनका सही तरीके से नहीं है, तो वो योगा प्रैक्टिसेस काफी गलत तरीके की आपके लिए साबित हो सकती है. काफी डिसीजेस को आपको फेस भी करना पड़ सकता है. इसलिए आहार और शुद्धि क्रिया ये काफी महत्वपूर्ण है. Now, कुछ हायर योगा प्रैक्टिसेस में बंधास और मुद्रास आते हैं. तो मुद्रास एंड बंधास आर सर्टेन पोस्चर्स ऑफ द बॉडी बाय विच कुंडलिनी इज सक्सेसफुली अवेकेंड. उसमें से कुछ पॉपुलर मुद्रास और बंधास ये है. बंधा हमारे 3 बंधा काफी फेमस है, जिसको मूल बंध, जलंधर बंध, उड़ियान बंध कहा जाता है. देन मुद्रास में आती है महामुद्रा, महाबंध, महावेद, योग मुद्रा, विपरीत मुद्रा, खेचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, योनि मुद्रा और काफी सारी मुद्राएं ऐसी है. सो इस संस्कृत श्लोका का अर्थ ऐसा है, There is nothing in this world like mudras for giving success. इस जगत में मुद्रास के जैसा कुछ नहीं है जो आपको सक्सेस को दे सके. Dyspepsia, constipation, piles, cough, asthma, enlargement of spleen, all spleen diseases, venereal diseases, leprosy, and all sorts of incurable diseases are cured by practicing mudras and bandhas. They are the most effective exercises for maintaining brahmacharya, without which nothing can be made in the spiritual path. So we will move to the next slide. Meditation, which is the main aim of yoga. सबसे महत्वपूर्ण पार्ट योगा का, जिसको हम लोग योगा का गोल ऐसे कहा जाता है. योगा सभी को पता है,
योगा की कुछ प्रैक्टिसेस काफी फेमस है, बट योगा का उद्देश्य क्या है ये सभी लोग आज के दौर में भूल गए हैं। योगा का उद्देश्य क्या है? योगा का उद्देश्य है ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ, ऐसा पतंजल योग सूत्र में कहा गया है। समाधि के लिए ही हम लोग क्लेशास यानी चित्त के वृत्तियों से जो क्लेशास हमारे में आते हैं, जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव थिंग्स है, उसको दूर करने के लिए ही हम लोग योगा प्रैक्टिसेस करते हैं। सो these are increasingly deep stage of consciousness right up to the samadhi, the transcendental state. Meditation works on alpha waves 8 to 12 hertz. Alpha brain waves are dominant during quietly flowing thoughts and in some meditative states. Alpha is the power of now, being in the present. Alpha is the resting state of the brain. Alpha waves aid overall mental coordination, calmness, alertness, mind and body integration, and learning. Alpha waves are the most common brain waves that occurs at the beginning of the meditation as you try to go into a deeper state of your mind. So I hope you understand why meditation is important, because it works on our waves of our brain is alpha waves, which is keeps you in the present. Now some more practices yogic to improve your personality are karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, mantra yoga, or raja yoga. So karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, mantra yoga, all these yoga practices are done only for the achievement of Raj Yoga. So कर्म योगा जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं वो हमने स्किलफुली करना है, भगवान को हमारे सारे कार्य अर्पित करते हुए करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। इसको कहा जाता है कर्म योग। भगवद गीता में कर्म योग के बारे में काफी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भक्ति योग अगेन से योगा ऑफ डिवोशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, हमारा इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जो प्रोसेस है इन द फ्लो ऑफ डिवोशन टू द डिवाइन एंड इन द सर्विस टू अदर्स। भक्ति करना यानी क्या होता है? हमको हमारे इमोशंस, जो भगवान के प्रति हमारे इमोशंस है या फिर वो डिवाइन जो स्पिरिट है उसके लिए जो इमोशंस है उसको बनाए रखना यानी भक्ति योग कहा जाता है। दूसरों की सेवा करना भी एक भक्ति योग का ही पार्ट है। ज्ञान योग, the yoga of evolution of our knowledge and expansion of our realization about the fundamental realities and meaning of the highest consciousness. यहाँ ज्ञान योग में ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान के लिए हमारा अध्ययन शुरू रखना। बट कौन सा ज्ञान? यहाँ तत्व ज्ञान की बात की जाती है, उसको सत्य ज्ञान ऐसे कहा जाता है। तो मंत्र योग, these are special vibrational sound that have an effect on all dimension of the individual. Probably the best known is ओम। प्रणव जप का यहाँ पे मंत्र योग में उल्लेख किया गया है। मंत्र योग में काफी मंत्र चैंटिंग्स के बारे में कहा गया है। सो मंत्र योग करने से हम लोग प्रेजेंट स्टेट में खुद को रख सकते हैं बाय द वाइब्रेशंस ऑफ chanting mantras. So all these practices helps you to achieve Raj Yoga. Raj Yoga, sage Patanjali was very specific about the positive effect on our peace of mind from good ethical relationship with others and caring for your own well-being. He enumerated this in the first two limbs of Raj Yoga. The Yamas and Niyamas contains 8 limbs of Raj Yoga.
पतंजलि, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, इसके पहले मैंने आपको बताया है, अष्टांग योग काफी फेमस है, जिसमें यमास और नियमास जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है और पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये दोनों चीजें हम लोग जब प्रॉपरली फॉलो करते हैं यम एंड नियम, तो राजयोग और उसके 8 लिम्ब से यम नियम फॉलो करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो हम लोग ये 8 लिम्स को जब प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्राणायाम तक आते हैं, जब हम लोग धारणा करते हैं, तब हम लोग ध्यान तक आते हैं, इसी को समाधि का मार्ग कहा गया है और इसी को राजयोग कहा गया है। According to Goraksha Shataka, asanena rujohanti pranayamena patakam vikaram manasam yogi pratyaharena sarvada. इसका मतलब asana removes disease, pranayama destroys all sins, pratyahara keeps away mental problems from yogi. आसन के प्रैक्टिस से सारे डिसीज दूर हो जाते हैं, प्राणायाम आपके सारे पापों को दूर करता है और प्रत्याहार की प्रैक्टिस आपके मेंटल, आपकी जो मानसिक दुर्व्यवस्था होती है, दुर्अवस्था होती है, मानसिक रूप से हम लोग ग्रसित रहते हैं, आजकल ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये सारे जो मानसिकता के से रिलेटेड प्रॉब्लम से ये प्रत्याहार के प्रैक्टिस से, जो योगा की प्रैक्टिस में से सबसे पॉपुलर प्रैक्टिसेस में आती है, इससे हम एक योगी उसको दूर कर सकता है. Now we will see these are the some great personalities who transform their self by the practicing of yoga. So here we can see Swami Vivekananda. He is the founder of Ramakrishna Mission. He is the founder of Ramakrishna Mutt. He is philosopher. He wrote so many books on Raj Yoga. He was the Raj Yoga practitioner and he is the father of modern yoga. Now here, the well-known personality in the field of yoga, BKS Iyengar Guruji, Ballura Krishnamacharya Sundararaja Iyengar, popularly known as B.K. Iyengar, was the founder of the style of modern yoga known as Iyengar Yoga, is the often referred to as the father of modern yoga. So here are so many personalities, Indian famous spiritual personalities who worked to give their disciples the teaching of yoga. So here we are reached to conclusion. It can be concluded from the foregoing paragraphs that one who really want to change his or her personality should follow and observe the aspects covered by sadhana. Those who follow the path, either eightfold path that is called as Ashtanga Yoga, or integrated personality aspects like dharma, artha, kama, moksha, जिसको हम लोग 4 पुरुषार्थ कहते हैं, they will attain the truth of life and achieve the every goal of human existence. Make yoga practice part of your life as a purification, and asana strengthens your body. Practice of pranayama makes the individual pranically strong and mentally strong. Practice of meditation makes you emotionally mature and spiritually evolved. Besides being strong and capable, one must be sensitive and emotional, because power of without sensitivity makes a person arrogant. People will soon start running away from him. The 3 expressions of sensitivity presently relevant here: service to the needy, generosity, and tolerance. You will be able to develop your abilities through the instrumentality of all the 3. In this way, the yoga sadhana of combining strength and emotions will continue to add charm to your personality. So these are some researches where I took all this context to transform our personality by the practices of yoga
Thank you so much. Any questions, please, if there is any kind of query, please mail me. I will try to solve your problem. Thank you so much.